ویلکم بیک۔ سازش نہیں مداخلت، قومی سلامتی کمیٹی نے پھر توثیق کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ NSC کے اعلامیے میں بتایا گیا خفیہ اداروں نے مراسلے کی تحقیقات کی۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کو ٹیلی گرام موصول ہوا تھا۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دی۔ سیکیورٹی اداروں کی تحقیقات میں یہ نتیجہ نکلا کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ دوران تحقیقات غیر ملکی سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ کہا گیا کہ سازش کے تحت حکومت گرائی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے منٹس پڑھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی اور نہ آج کے اجلاس میں ایسی بات ہوئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بتا دیا، بولے جو کہتے تھے نہ صاف چلی شفاف چلی، اب کہتے ہیں بیکار چلی واہیات چلی۔ فیصلہ کیا گیا ہے ECL میں 120 دن سے زیادہ کسی کا نام شامل نہیں ہوگا۔ کہا گیا ایک سازش کے تحت گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، ایسی کوئی بات نہ پہلی میٹنگ میں پائی گئی، ہم نے منٹس ڈیسیجن دیکھے ہیں، نہ آج کی ڈسکشن میں پائی گئی۔ سازش کا جو ڈرامہ جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ انڈیا میں الیکشن ہو رہا ہے، یہاں پہ کوئی کہے کہ جی اللہ کرے مودی جیت جائے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مداخلت کہہ لیں تو کہہ لیں۔ جو کہتے تھے نا کہ صاف چلی شفاف چلی، لوگ کہتے ہیں بیکار چلی واہیات چلی۔ کوئی بھی بندہ گورنمنٹ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، 120 دن سے زیادہ ہو گیا ہے، ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکل جائے گا۔ سابق حکومت کے خلاف بیرونی سازش یا مداخلت، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے پر تحریک انصاف نے سوالات اٹھا دیے، بلا تاخیر عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہہ دیا بیرون ملکی انٹرفیرنس تھی۔ وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے، غیر ملکی پاکستان کے خلاف ہے، تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ سازش یا مداخلت، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے پر PTI نے سوالات اٹھا دیے، بلا تاخیر عدالتی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا جوڈیشل کمیشن 7 پہلوؤں سے معاملے کی تحقیق کرے اور حقیقت سامنے لائے۔ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ چیف جسٹس کی سربراہی میں تشکیل پائے، اوپن ہیئرنگ کے ذریعے معاملات کی چھان بین کرے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ملاقات میں عدم اعتماد کا ذکر موجود ہے؟ پاکستان کی معافی کو عمران خان کو ہٹانے سے مشروط کیا گیا۔ Vote of no confidence was specifically mentioned and it links to the removal of Imran Khan government. کیا قومی سلامتی کمیٹی نے مراسلے کو داخلی معاملات میں مداخلت قرار نہیں دیا؟ The National Security Committee declared it as interference in Pakistan's internal affairs. کیا سفیر کی سفارش پر امریکہ کو احتجاجی مراسلہ دینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا؟ کیا سلامتی کمیٹی نے نہیں کہا کہ مراسلے کو پارلیمانی سلامتی کمیٹی میں زیر بحث لائیں، ملاقات میں دی گئی دھمکی اور مقامی کرداروں میں گٹھ جوڑ کا سراغ لگایا جائے؟ کیا امریکی سفارتکاروں کی خصوصی طور پہ سیاستدانوں سے ملاقاتیں نہیں ہوئیں؟ Diplomats of a particular country, especially with opposition leaders and PTI dissidents. PTI کے منحرف ارکان سے ملاقاتوں کی تفصیلات کی کڑیاں ملانا ہوں گی۔ PTI رہنما شیریں مزاری کہتی ہیں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ حکومت کے خلاف سازش یا مداخلت نہیں ہوئی؟ مراسلے میں غیر ملکی عہدیدار سے متعلق واضح لکھا ہوا ہے۔ دفتر خارجہ نے سائفر کو دبانے کی کوشش کی، اسے شاہ محمود قریشی سے بھی چھپانے کی کوشش کی گئی۔ نیا اعلامیہ امریکہ کے گناہ وائٹ واش کرنے کے مترادف ہے۔ کیسے فیصلہ کیا کہ کنسپیرسی نہیں ہے، سازش نہیں ہے؟ الفاظ کوٹ کروں گی جو سائفر میں تھے۔ If Prime Minister Imran Khan is not removed, he will become isolated with the US. We will have to take the issue head on.
However, if the vote of no confidence succeeds, all will be forgiven. Clearly state करता है इन्होंने प्रेशर डाला। तो मुझे अब पता चला है कि फॉरेन ऑफिस ने छुपाया हुआ था फॉरेन मिनिस्टर से। कुछ दिन ये बैठे रहे हैं, प्रेशर आ रहा था कि बस दबा दो। लेजिंग आज नेशनल सिक्योरिटी ने भी कह दिया साजिश नहीं मुदाखलत हुई है। और कितना मजाक उड़वाना है, जिसको साजिश के तहत लाया गया, जिसने सारी साजिश की, आज वो हमें बता रहा है कि साजिश ही नहीं मुदाखलत हुई है। तर्जुमान इमरान खान शहबाज गिल का ट्वीट, कहा आप तो पहले कहते थे ये मरासला झूठा है, फिर कहा गया मरासला सच है, फिर कहा मुदाखलत हुई है साजिश नहीं। आप अवाम को इतना बेवकूफ़ समझते हैं? अमेरिका से साइफर आया था, नई हुकूमत ने भी तस्दीक कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रबानी खर कहती हैं कौमी सलामती कमेटी में सफ़ीर असद मजीद ने वजाहत के साथ बताया उन्होंने डी मार्च की तजवीज़ दी थी। साइफर में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो गैर मामूली थी। सफ़ीर ने प्रोफेशनल अपनी ड्यूटी की, क्योंकि यकीनन उसमें अनयूजुअल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, जो कि एक आई वुड से नॉट एंटायरली अनकॉमन। सफ़ीर ने अपने असेसमेंट में ये लिखा 7 मार्च को कि जी मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि यूएस एम्बेसी में इस्लामाबाद में उनको बुलाया, उनसे पूछी कि क्या ये पोजीशन आपकी गवर्नमेंट वाइड है या ये एक फर्द की पोजीशन है। 7 मार्च के बाद क्यों फॉरेन ऑफिस को इंस्ट्रक्शंस नहीं गई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कि भाई आप डिमार्च करें? वो पूछते रह गए कि जी अब हम डिमार्च करें, तो उनको बताएगा कि नहीं हम आप होल्ड ऑफ करें। हमारे सफीर ने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करते हुए वो साइफर फॉरेन भेजा, और इसीलिए हमारे सफीर ने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करते हुए ये कहा कि फॉरेन आप डिमार्च करें और उनसे पूछें कि क्या ये गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पोजीशन है या ये एक पर्सनल पोजीशन है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा ने तो तस्लीम कर लिया कि गैर मुल्की साइफर आया था, लेकिन वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तो उसे जाली ख़त करार दिया था। अपने बयानात में उन्होंने साइफर से मुताल्लिक़ कहा कि वो दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए नहीं आया था, बल्कि दफ्तर ख़ारजा में ही जॉइंट सेक्रेटरी ने सील्ड ख़त वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी को भिजवाया था। साइफर इन्होंने लहराया वो साइफर फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए नहीं आया था। साइफर सेक्रेटरी ने दफ्तर में सील्ड एनवेलप दिया जॉइंट सेक्रेटरी को और कहा कि ये एसएपीएम को दिया जाए। जो साइफर है वो खुद लिखवाया गया, उसको सील्ड लिफाफे में सेक्रेटरी के जरिए भेजा गया फॉरेन मिनिस्ट्री को बाईपास करके। हुकूमती दबाव काम न आया, अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद अपने मौक़िफ़ पर डट गए। ज़राए ने बताया कौमी सलामती मीटिंग में असद मजीद ने कहा कि यह हकीकत है ख़त में धमकी आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। कैसे कहूँ कि ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गुज़श्ता इजलास के फ़ैसलों की तौसीक की गई। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नामुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ ना लेने का केस। लाहौर हाई कोर्ट का 24 घंटे में सदर को नामुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने के लिए दूसरे फ़र्द को मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा गवर्नर पंजाब हलफ लेने से इनकार नहीं कर सकते। सदर पाकिस्तान किसी और को हलफ लेने के लिए नामजद करे। सदर पाकिस्तान को अदालती फैसले की कॉपी भिजवाई जाए। अदालत की हाई कोर्ट ऑफिस को हिदायत। चीफ जस्टिस ने लिखा एजी पंजाब के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने हलफ लेने से मासूरी जाहिर की है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया गवर्नर 24 घंटे में सदर को वजूहात लिखेंगे। अब क्लियर हैं कि गवर्नर हलफ नहीं लेना चाहते। आज गवर्नर पंजाब कोई दरबारी ओथ कमिश्नर नहीं। आइन किसी को इख्तियार नहीं देता कोई मुझ पर गैर आइनी काम के लिए दबाव डाले। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का ट्वीट, लिखा अपने हलफ की पासदारी और जिम्मेदारी से बखूबी वाकिफ हूँ। वफाकी काबीना की दूसरी किस्त काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन, बीएनपी मिंगल के आगा हसन बलोच और नून लीग के जावेद लतीफ़ ने वफाकी वजारत का हलफ उठा लिया। बीएनपी के हाशिम नोतज़ई भी वज़ीर मुमलिकत बन गए। तकरीब हलफ बर्दारी अवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन को चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का चार्ज दे दिया गया। पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर मुमलिकत वज़ीर मुमलिकत मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का कहना है कि चौधरी सालिक हुसैन ने जो भी कदम उठाया मुझसे पूछकर उठाया। मेरे मशवरे से शहबाज शरीफ को वोट दिया था।
चौधरी सादिक को मेरी मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत हासिल है। ARY से गुफ्तगू में कहा, सबसे पहले पाकिस्तान, मुल्क की सलामती पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। जिस तरीके से उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया वो मेरे मशवरे से और मुझसे पूछ कर किया। बकरियां खेत में क्यों दाखिल हुई? अलीपुर के नज़दीक जमींदार ने बकरियां चुराने वाले 14 साल के लड़के को रस्सी से दरख्त पर लटकाकर फांसी दे दी। मोहसिन हाफिज कुरान और रोज़े की हालत में था। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मोहसिन की लाश को दरख्त से लटकाकर खुदकुशी का तासुर देने की कोशिश की गई। गजलानी बरादरी के जमींदार फयाज गजलानी और नौकर बिलाल आरई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने जमींदार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। आज छुट्टी की थे, छुट्टी का बकरे खाली खेत है, कोई साल गजलानी ना दुश्मन नहीं कर कोई रोला का नहीं सर, आज तक ना कोई झेड़ा ही सारा का नहीं, सिर्फ वो खाली खेत है कि मेरे बच्चों को फांसी ला दी है। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। मुल्क में सियासी बहरान बना मईशत का कड़ा इम्तिहान। शहबाज शरीफ हुकूमत आने के बाद महंगाई से निजात के बयानात हवा होने लगे। डॉलर फिर तेजी से ऊपर जा रहा है, रुपया कदर खो रहा है, सरमायाकारी रुक गई, बिजनेसमैन ने अपना पैसा बैरून मुल्क ही रोक लिया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त है। आपने कौन सा तीर मारा है? आज भी महंगाई है। पेट्रोल बॉम्ब बिजली बन के गिरा है। कैनेडियन से कहें रहम करें अवाम पर। पाकिस्तान में एक और सियासी बहरान, मईशत की कश्ती फिर हिचकोले खाने लगी। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र के बावजूद इस वक्त डॉलर 188 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। नई हुकूमत आई है, इन्होंने जो है चीजों को बहुत बुरे तरीके से मैनेज किया, तो इन्होंने कोशिश की कि मुल्क में माशी अदम इस्तेकाम हो। इमरान खान की हुकूमत ने आवाम को महंगाई से बचाने के लिए पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमत कम करके 4 माह तक मुंजमद की। 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं, 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। मगर मौजूदा हुकूमत ये तमाम फैसले अब खत्म करने का इरादा रखती है। अवाम महंगाई से नाला और किसी भी रिलीफ से नाउम्मीद है। सब्जी के भी रेट ऊपर चले गए हैं, फ्रूट के रेट भी बहुत ऊपर हैं, आसमान से बातें कर रही हैं कीमतें। इनसे कोई तवक्को नहीं है और अभी आप देखें हर चीज पे कीमत बढ़ा दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं है, बेरा गर्क होगा और लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। इजाफी बिजली है जो फेडरल गवर्नमेंट ने दी थी वो वापस ले ली है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग 2 घंटे की स्टार्ट हो गई है। सियासी और माशी बहरान क्या गुल खिलाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मोइन अख्तर की आज 11वीं बरसी है। उनके कुछ किरदार देखते हैं। मंजर बदले, पसे मंजर बदले, बरसों गुजरे लेकिन मुल्क के हालात नहीं बदले। अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे। हाँ तो तुम हो गए होगे, हमें क्या? झंडा लगाया घर की छत पे? नहीं। क्यों? अमेरिकन झंडा ही नहीं मिल रहा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है जी। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। हाँ वकार, सलाम अलैकुम भाई। कुछ पता चला तुम्हें? पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत। जी जी, अनवर मकसूद ने अभी बताया है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। नशरियात भी ARY की बंद हुई। नोटिस भी ARY को ही भेज दिया गया। पैमरा का अनोखा इकदाम। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के जलसे के दौरान केबल पर ARY नशरियात की बंदिश। पैमरा ने नोटिस लेने के बजाय ARY न्यूज़ को ही नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में कहा गया कि किसी को ऐसी हिदायत नहीं दी, चैनल बंद करें। इस तरह की खबर चलाना झूठी खबरों के ज़ुमरे में आता है। चैनल बंदिश के हवाले से खबरें नशर करने पर 7 यौम में वजाहत दें। ईद करीब आते ही कराची की मार्केट्स में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। खवातीन की बड़ी तादाद ईद शॉपिंग में मसरूफ है। रुबीना अलवी इस वक्त हैदरी मार्केट से रिपोर्ट कर रही हैं। हम मौजूद हैं कराची के एक मार्केट में जिसका नाम है हैदरी मार्केट और यहाँ पर लोगों की गहमा गहमी देखने में आ रही है। अगर मवाजना किया जाए पिछले गुजरे हुए 2 सालों का तो वो तो कोविड के पेश नज़र ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा हो रही थी। इस साल लोग आज़ादाना तौर पर मार्केट्स में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों को भी बहुत इंजॉय कर। 2 साल के बाद ये मार्केटें वगैरह इतना इंजॉयमेंट हम कर सकते हैं। बच्चों के साथ शॉपिंग करने निकले हैं, खुली हवाम है, खुली फिजा में निकले, ऐसा लग रहा है वरना घर में कैद हो गए थे सब। तो बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह फिर आप सारे भी यहीं करके जाएंगे बाहर ही। 2 साल से जो है वो ऐसा चल रहा था कोविड की वजह से,
तो अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत खुश हैं सब। शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने के स्टॉल्स पे भी काफ़ी रश देखने में आ रहा है और फैमिलीज के साथ लोग जोक दर जोक मार्केट का रुख कर रहे हैं। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।